Okay, so let's start the new module, that is queuing theory. So these are the syllabus of the queuing theory. First one is the introduction. In introduction, we will discuss about customer. What is the definition of customer? What is the meaning of queue or waiting line? And service channel. Next is the element of the queuing system. So there are two elements basically: arrival distribution and service or departure distribution. In arrival distribution, we will discuss the arrival rate, and in service distribution, you have to discuss the expected service rate. Next content is the service channel. So basically there are two type of the channels. First one, single channel or multiple channel. It may be finite. Okay. Next is service discipline or service order. So there are four type of the service discipline. First one is the first come first serve, and this is also known as first input first output. Second one is the last come first serve, and next is the select randomly, service given in a random order, and last one is the general ZD, I mean general discipline. So there are four type of the service discipline. Next we will discuss about the maximum number of customer allowed in the system. So it may be finite or infinite. Next, number of customer served in the system. This is also called as the calling source. It may be once again finite or infinite. Next, customer behavior. So there are three type of the customer behavior on basis of this thinking, that is bulking, ranging, and jockeying. Next important concept is the operating characteristics of the queuing system. ये main important है because इसके ऊपर ही numerical आते हैं exam में. And last content is the Kendall's notation for the queuing model. So in general, that is M1, S2 infinite, FS, FC, FS. So what is the meaning of that? We will discuss later on. And in this notation, we will cover expression of LQ, LS, WQ, WS, and problem based on LQ, LS. So these are their content. I mean, this is their syllabus. ये हम लोग को पूरा cover करना है. Okay, so numerical basically last module पे आएगा. I mean last topic, that is a Kendall's notation, और इसी के basis पे numerical आएगा. बाकी के सारी चीजें जो है वो these are the theory part. You should know about this content. So this is your model of queuing theory, right? So in this queuing theory, basically there are two concepts. That first one is the queue, and second is the service facility. So in queue, number of customer may be finite or infinite. ये जो मैंने circle से बनाया हुआ है, these are called as the customers जो line में खड़े हैं. And S1, S2, S3, these are the service channel. For example, when you go into a railway platform and for टिकट लेने के लिए आप लाइन में खड़े रहते हो. सपोज दैट वन लाइन है, एक ही लाइन वहां फॉर्म है, बट देयर आर थ्री काउंटर्स. तो ऐसे सिचुएशन में S1, S2, S3, दीज आर द काउंटर, आई मीन सर्विस चैनल, एंड ओनली वन क्यू. ये क्यू भी पैरेलली हो सकते हैं, तो उसको नंबर ऑफ क्यूज बोलते हैं, बट हम लोग को एक ही क्यू के बारे में डिस्कस करना है. ओके, सो दिस ओवरऑल पिक्चर इज द नथिंग बट द क्यूइंग मॉडल. After that, one by one, we will discuss about the every parameter. So first is the customer. What is the meaning of customer? The arrival unit that requires some service to perform. The customer may be person, machine, vehicles, part, etc. Right? So this is a very simple definition of the customer. Definition is what? The arriving unit that required some service. ठीक है, a person जिसको service की requirement है, this is called as a customer. And that it may be either वो person हो सकता है, या फिर machine, या फिर vehicles, या फिर कोई machine का part. Okay, next parameter is the queue, I mean waiting line. The number of customer waiting in the service to be the service. Service के लिए जो लोग waiting line में खड़े हैं, that line is called as the queue and or waiting line also. Third one is the service channel. जो यहाँ पे हम लोगों ने ये सिलेबस में देखा है ना, इसका एक एक पैरामीटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कस्टमर, क्यू, सर्विस चैनल, फिर एलिमेंट ऑफ द क्यू सिस्टम. तो इसके सारे पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे. ये जो भी यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा है टॉपिक वाइज, फर्स्ट टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड इज द एलिमेंट ऑफ क्यू सिस्टम, एंड नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्यू सिस्टम, एंड फोर्थ वन कैंडल नोटेशन और क्यूइंग मॉडल. So there are four
टॉपिक और उसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, वो हम लोग 1 बाय 1 यहाँ थ्योरी के बेसिस पे डिस्कस करना है। लास्ट में हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, कुछ फॉर्मूले भी डिराइव करके। तो पहले बेसिक पैरामीटर्स क्या है वो आप धीरे धीरे माइंड में सेट करते जाओ। तो ये पूरा पिक्चर देख के आपको क्यूइंग मॉडल, क्यूइंग सिस्टम समझ में आया रहेगा कि उसमें बेसिकली क्या क्या होता है। कस्टमर इंपॉर्टेंट है, क्यू एंड सर्विस चैनल्स, और कितने लोगों को सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड होने का उसका रेट क्या है, कस्टमर अराइव होने का रेट क्या है, उसको किस प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा थियरी पार्ट है इसका, इजिली आप समझ भी पा रहे होंगे बिकॉज ऑलरेडी फेमिलियर इन सारे वर्ड से आप। सर्विस चैनल का मतलब आपको समझ गया, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आप टिकट परचेस करना चाहते हैं तो वहां पे बहुत सारे विंडो रहते हैं, तो अगर एक ही विंडो ओपन है तो उसको सर्विस चैनल 1, अगर मोर देन 1 है तो उसमें सर्विस, सपोज 3 विंडो ओपन है तो आप बोलेंगे कि सर्विस चैनल 3 है। तो उसको हम लोग सी से नोट रिप्रेजेंट करते हैं, सर्विस चैनल को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ द क्यूइंग सिस्टम। कौन कौन सा एलिमेंट है क्यूइंग सिस्टम में? तो फर्स्ट वन अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कस्टमर आने का जो रेट है वो रेट कैसे कैलकुलेट होगा, बिकॉज कस्टमर तो रैंडमली आ सकता है, उसके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो हाउ टू कैलकुलेट द कस्टमर अराइविंग एज वेल एज अराइविंग रेट, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी यूज करते हैं, और वो पॉसिबिलिटी मोस्टली हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करते हैं। ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट इज द अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और उसके अंदर जो अराइवल रेट है कि एक 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितने कस्टमर वहां पे आ रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ टाइम, मतलब 1 सेकेंड में समझते 5 कस्टमर आ गए, तो अराइवल रेट इज द 5। ठीक है, सो टाइम इट में बी मिनट, आवर और सेकेंड, डिपेंड्स कि किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुआ। अगर 1 मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज 1 मिनट में 10 कस्टमर आ गए, तो अराइवल रेट इज द 10 कस्टमर पर मिनट। और 1 सेकेंड के अकॉर्डिंग अगर काउंट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर बोलेंगे। तो उसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लेमडा लिखा है देखो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स, अराइवल्स इज नथिंग बट कस्टमर डिवाइड बाय टोटल अराइवल टाइम। तो सपोज 20 कस्टमर को आने के लिए 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो उसका जो लेमडा का वैल्यू आएगा 20 डिवाइड बाय 10 पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। तो लेमडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोलता भी है, और क्वेश्चन में गिवन भी यही रहेगा। इसी के बेसिस पे ये देखो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, P ऑफ n दैट इज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लेमडा इज नथिंग बट अराइवल रेट। तो कस्टमर किस रेट से आ रहा है उसका जो कैलकुलेशन है, उसका जो पॉसिबिलिटी है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कस्टमर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अराइवल रेट। and formula of arrival rate is lambda is nothing but expected number of arrivals divided by total arrival time. So this is the important parameter of this topic. Next, जैसे आने वाले का अराइवल, हम लोगों ने अराइवल रेट कैलकुलेट किया, वैसे जो जिन लोगों को सर्विस मिल गया, तो सपोज दैट कितने लोग सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, दैट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कितने एक सेकेंड में सपोज दैट 1 सेकेंड में 20 कस्टमर को सर्विस मिला, सपोज दैट 1 सेकेंड के अंदर 20 कस्टमर को सर्विस मिला, सो दैट इज कॉल्ड एज द सर्विस रेट। राइट, सपोज दैट किसी होटल में आप जाते हैं, वहां पे सपोज दैट 20 टेबल्स लगे हुए हैं, तो और 1 आवर के अंदर 20 टेबल पे सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, तो 1 आवर में 20 टेबल पे सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, यानी सर्विस रेट इज 20 नंबर ऑफ कस्टमर पर आवर। आवर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, या फिर टाइम सेकेंड या फिर मिनट, वो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्म किया रहेगा। तो सर्विस रेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ कस्टमर जिनको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सर्विस रेट, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड म्यू इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर सर्व इन द सिस्टम, जिनको सर्विस मिल रहा है सिस्टम के अंदर, डिवाइड बाय टोटल सर्विस टाइम, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस रेट। सो वंस अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं वापस पहले वाले को रिकॉल करता हूँ। यहाँ पे अराइवल डिवाइड बाय टोटल अराइवल टाइम इज कॉल्ड एज अराइवल रेट, एंड कितने लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम में सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द सर्विस रेट। तो सर्विस रेट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अराइवल रेट को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 1 आवर में कितने कस्टमर आते हैं उसको हम लोग बोलेंगे अराइवल रेट,
और 1 आवर में कितने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द सर्विस रेट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये जो म्यू है वो कैलकुलेट होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, और जो लेमडा है वो कैलकुलेट होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो किसी ने पूछा कि अराइवल रेट में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, तो आप बोलेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और सर्विस रेट की कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट होता है, देन यू टेल द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अराइवल रेट? तो अराइवल रेट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स डिवाइडेड बाय टोटल अराइवल टाइम। आई मीन 1 आवर में 20 कस्टमर को अगर 20 कस्टमर अगर सिस्टम में आ रहे हैं, तो अराइवल रेट इज 20 कस्टमर पर आवर। ऐसा आंसर आपको देना है। अगर 1 आवर में 10 लोगों को सर्विस मिल रहा है, तो सर्विस रेट इज द 10 कस्टमर पर आवर, राइट? इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दीज आर द एलिमेंट ऑफ द क्यूइंग सिस्टम। नेक्स्ट, सर्विस चैनल। कितने सारे चैनल्स प्रोवाइड है, मतलब कितने सारे काउंटर अवेलेबल। जैसे आप टिकट परचेस करने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे काउंटर रहते हैं, लेकिन अगर एक ही काउंटर ओपन है तो उसको सिंगल चैनल बोलेंगे, और एक से ज्यादा अगर काउंटर ओपन है तो उसको बोलते हैं मल्टी चैनल। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, आइदर सिंगल चैनल और मोर देन सिंगल चैनल, यानी मल्टी चैनल, लेकिन फाइनाइट ही रहेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द सर्विस चैनल। ये क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया बहुत प्रॉपर वे में। नेक्स्ट पैरामीटर इज द सर्विस डिसिप्लिन और ऑर्डर ऑफ सर्विस। ऑलरेडी मैंने आपको सिलेबस में भी लिख के दिया, वापस यहाँ पे देख रहे हैं, वहीं पे इसका लॉन्ग फॉर्म बस डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट कम, मतलब जो पहले आता है उसको पहले सर्विस मिलेगा। दिस सिस्टम, दिस और डिसिप्लिन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। एंड सेकंड जो कंसेंट होता है, कुछ लोग सेकंड वाला फॉलो करते हैं कि जो लास्ट में आएगा उसको पहले सर्विस देंगे। जैसे कि लोडिंग एंड अनलोडिंग की बात होती है, सपोज दैट गोडाउन में ट्रक के ऊपर सामान लोड कर रहे हैं, तो जो लास्ट में ट्रक आता है उसको पहले लोड करके फ्री करते हैं, और जो पहले ट्रक आता है उसको लास्ट में करते हैं, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको फिर जाने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप टिकट खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, जो पहले काउंटर पहुंचता है उसको पहले टिकट मिलेगा, और जो लास्ट में पहुंचता है उसको लास्ट में टिकट मिलेगा। तो टिकट काउंटर पे फंडा जो है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होता है, लेकिन लोडिंग और अनलोडिंग की बात होती है तो वहां पे लास्ट कम फर्स्ट सर्विस, मतलब लोडिंग के टाइम पे लास्ट कम फर्स्ट सर्विस होता है, और अनलोडिंग के टाइम पे जो पहले जाएगा उसको पहले अनलोड कर लेंगे। लेकिन जब लोडिंग का बात आएगी तो वहां पे सबसे पहले जो लास्ट में आता है उसको पहले लोड करेंगे, सो दैट वो आगे का जो ट्रैफिक है वो फ्री हो जाए, एंड पीछे वाले जितने भी ट्रक है उनके साथ निकल जाए। तो वहां पे जो सिस्टम यूज होता है LSFS। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे रैंडमली ऑर्डर में सर्विस दिया जाता है, डिपेंड्स अपॉन कि वो कस्टमर का ऑर्डर क्या है या फिर उसका डिमांड क्या है। किसी का बहुत इमरजेंसी, जैसे कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर वहाँ कोई इमरजेंसी केस है तो वहाँ पे जो इमरजेंसी है उसको पहले चूज कर लिया जाता है, तो वहाँ रैंडमली चूज किया जा रहा है, वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, सीक्वेंस में सबको ले रहे हैं अंदर, लेकिन जब अचानक से कोई इमरजेंसी केस आया तो उसको रैंडमली चूज करके ICU में सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का सिस्टम यूज होता है। और जनरल सर्विस डिसिप्लिन, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, डिपेंड्स कि सर्विस प्रोवाइडर किस ऑर्डर में कस्टमर को अंदर लेना चाहता है, तो इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं। तो होप सो कि आपके सारे डिसिप्लिन समझे रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, मतलब सिस्टम में कितने कस्टमर अलाउ किए जा सकते हैं। तो इट में भी फाइनाइट, इट में भी इनफाइनाइट। कुछ सिस्टम ऐसे होता है जिसमें कस्टमर आते जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होता है कि जिसमें सिस्टम में फाइनाइट कस्टमर ही अलाउ किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट आप थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट सपोज दैट 400 है, तो 400 के बाद वो हाउसफुल का बोर्ड लगा देंगे, इसका मतलब अब वो सिस्टम में कस्टमर को अलाउ नहीं करेंगे। इनफाइनाइट का मतलब, सपोज दैट होटल की बात करें, होटल में आप सपोज दैट जा रहे हैं, तो वहां पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लोग आते जाएंगे और सर्विस मिलते जाएगा, तो वहां पे इनफाइनाइट ऑफ कस्टमर को सर्विस मिलती है। तो ये दो एग्जांपल मैंने दिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट, राइट। तो नंबर ऑफ कस्टमर इट में भी फाइनाइट और इट में भी इनफाइनाइट, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम के बाकी के पैरामीटर भी डिस्टर्ब होते हैं, तो आगे हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। नेक्स्ट कॉलिंग सोर्स। कॉलिंग सोर्स पॉपुलेशन इज जितने लोगों को सर्विस मिल रहा है, तो सिस्टम में कितने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिस्टम में सपोज दैट 20 सीट अवेलेबल है, तो सिर्फ 20 लोगों को ही सर्विस मिलेगा, उससे ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट। और अगर सपोज दैट इनफाइनाइट है, जैसे कि कोई डाटा आप सेंड कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो आप वहाँ इनफाइनाइट ऑफ डाटा सेंड करते जाते तो वहाँ पे
नंबर ऑफ जो डाटा है दैट विल बी इनफाइनाइट। तो ये चीज टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है, डेली लाइफ में भी यूज होता है, खासकर कंप्यूटर लैंग्वेज में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्यूबिन थ्योरी। जो भी हम लोग इंटरनेट सर्विंग करते हैं, जिसको हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं, आईपी एड्रेस वगैरह थोड़ा बहुत आपको लिटिल बिट आइडिया रहेगा, वहाँ पे ये सिस्टम बहुत ही प्रॉपर वर्क होता है और वहाँ पे डाटा इनफाइनाइट यानी कि कॉलिंग सोर्स इनफाइनाइट रहता है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स है जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट इज द कस्टमर बिहेवियर। So customer behavior में there are three type. First one is the bulking, second one is the ranging, reneging and jockeying. तो bulking का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। If customer decide not to enter a queue since it is too long, अगर लाइन बहुत ही बड़ा है और वो सर्विस लेने के लिए गया और देखा कि लाइन बहुत बड़ी है और उसको आज नहीं सर्विस लेना है, कल लेना है, तो इस टाइप का जो थिंकिंग अपने माइंड में रख रहा है, और सच टाइप ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड एज बाल्किंग। मतलब उसने देखा कि लंबी लाइन है तो आज नहीं जाएंगे, कल टिकट परचेस कर लेंगे या फिर कल जो भी सर्विस लेना हो लेंगे। तो सच टाइप ऑफ जो थिंकिंग उसके दिमाग में आती है, उनको अगर सेग्रीगेट करके अलग करें, सो सच टाइप ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड एज द बाल्किंग। सेकेंड है रिनेजिंग। इफ कस्टमर इंटर ए क्यू बट आफ्टर सम टाइम लूज अ पेशेंस एंड लीव इट। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप लाइन में खड़े रहते हैं और फिर आपको लगता है कि बहुत टाइम लगने वाला है, मे बी शायद सर्विस मिलने में बहुत टाइम होगा, और अचानक से आपके माइंड में ये बात सेट हुआ और आप क्यू छोड़ के बाहर निकल गए। तो अगर इस तरह का थिंकिंग आप रखते हैं तो सच टाइप ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड एज रिनेजिंग। नेक्स्ट इन द जॉकिंग। जॉकिंग बहुत ही सिंपल है। सपोज द टू पैरेलल लाइन है, जैसे जनरली हम लोग टिकट परचेस करने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एक लाइन छोटी रहती है, एक लाइन बड़ी रहती है। तो बड़ी लाइन का कोई भी एक मेंबर निकल के छोटी लाइन में चला जाता है, देखता है कि वहां पे जल्दी हमको सर्विस मिल जाएगा। तो इस तरह का थिंकिंग जो कस्टमर के माइंड में आता है, सच टाइप ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड एज जॉकिंग। होप सो आपको ये तीन पैरामीटर समझा रहेगा, राइट। तो दीज आर द बेसिकली थियरी पार्ट। आगे भी थियरी पार्ट है, लेकिन अभी ये इनके डेरिवेशंस में हम लोग को फ्यूचर में करना है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये जितना भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इसको ऑपरेट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिराइव भी करेंगे और इनके ऊपर ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जिसमें फर्स्ट पैरामीटर है क्यू लेंथ। क्यू लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, सो पहले तो उसका डेफिनेशन देखते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू लेंथ। तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन अ क्यू और वेटिंग टू गेट अ सर्विस। पूरे लाइन में कितने लोग खड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्यू लेंथ। नंबर ऑफ कस्टमर को क्यू लेंथ बोलते हैं। उसका मेजरमेंट करके कितनी लंबी लाइन लगी वो नहीं देखना है, डिस्टेंस वाइज मेजर नहीं करना है, एक पर्टिकुलर क्यू में कितने नंबर ऑफ कस्टमर है जो सर्विस के लिए रुके हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्यू लेंथ। Average number of customer in a queue waiting to get a service, this is called as the queue length, जिसको हम लोग LQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप अच्छे से थोड़ा माइंड में सेट करो, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन से आगे जाके आएगा। नेक्स्ट है सिस्टम लेंथ। अब क्यू लेंथ में, क्यू लेंथ का मतलब समझ गए, क्यू में कितने लोग खड़े हैं। सिस्टम लेंथ का मतलब होता है कि जो लोग क्यू में खड़े हैं और कुछ लोगों को सर्विस भी मिल रहा है, तो दोनों को ऐड करके, मतलब कुछ सपोज दैट कुछ लोग लाइन में खड़े हैं और कुछ लोग सर्विस, ऑलरेडी सर्विस इनको मिल रहा है, तो सिस्टम के अंदर दोनों को ऐड करके दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम लेंथ। आई मीन क्यू के अंदर जितने नंबर ऑफ कस्टमर है प्लस सर्विस जितने लोगों को मिल रहा है, दोनों को एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम लेंथ। यानी कि सिस्टम में कितने कस्टमर प्रेजेंट, राइट। तो ये दो चीजें आपको समझ में आए। एल एस का फॉर्मूला अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो एल क्यू यानी क्यू में कितने खड़े हैं, एल क्यू प्लस कितने लोगों को सर्विस मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एल एस कैलकुलेट कर लेंगे इन फ्यूचर। तो होप सो कि आपको ये सेकंड पैरामीटर भी समझा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेटिंग टाइम इन अ क्यू। तो एक कस्टमर एक पर्टिकुलर लाइन में, मतलब सर्विस मिलने से पहले उसको कितना, जैसे कि वो सिस्टम में आया, क्यू में आके खड़ा हो गया और सर्विस मिलने तक का उसका जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज द वेटिंग टाइम। उतने टाइम तक उसने क्यू में वेट किया और फिर बाद में उसको सर्विस मिला। तो दिस इज कॉल्ड एज द वेटिंग टाइम। इसको हम लोग डब्ल्यू क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे जाके कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर द वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। पूरे सिस्टम में कितना टाइम लग रहा है, आई मीन वो पहले क्यू में खड़ा हुआ, उसके लिए उसको कुछ टाइम लगा और बाद में उसको सर्विस के लिए भी कुछ टाइम लग रहा है। तो दोनों टाइम को ऐड करने के बाद दैट इज कॉल्ड एज द टोटल टाइम, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। डब्ल्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डब्ल्यू एस का जो फॉर्मूला होगा दैट इज डब्ल्यू क्यू प्लस सर्विस टाइम। और सर्विस टाइम को हम लोग 1/म्यू से कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज म्यू इज द सर्विस रेट। तो सर्विस रेट का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज कॉल्ड द सर्विस टाइम। ओके, तो आगे जाके हम लोग देखते हैं, इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करना है अभी। बट अभी तो हम लोग सिर्फ हर एक पैरामीटर को देख रहे हैं कि डब्ल्यू क्यू क्या होता है, डब्ल्यू एस क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यू क्या है, एल एस क्या है।
नेक्स्ट पैरामीटर इज द यूटिलाइजेशन फैक्टर और ट्रैफिक इंटेंसिटी, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लेमडा बाय म्यू। लेमडा क्या है? लेमडा इज नथिंग बट अराइवल रेट एंड म्यू इज नथिंग बट डिपार्चर रेट या फिर सर्विस रेट। दोनों का रेशियो इज नथिंग बट यूटिलाइजेशन फैक्टर। मतलब जो सिस्टम है वो कितना उसका जो कैपेबिलिटी है वो कितना स्ट्रांग है, ये कौन पैरामीटर डिसाइड करेगा? ये रो डिसाइड करेगा। उस ट्रैफिक की इंटेंसिटी क्या है? मतलब अगर सिस्टम का ये पता करना है कि ये सिस्टम कितना परफेक्ट है या फिर परफेक्ट नहीं है, कितना एफिशिएंट नहीं है, ये सारी चीजों को अगर पता लगाना है तो रो से कैलकुलेट होता है। ये जो सिंबल है उसको रो बोलते हैं एंड रो का जो फॉर्मूला है दैट इज लेमडा बाय म्यू। एंड लेमडा ऑलरेडी मैंने आपको बताया दैट इज अराइवल रेट और म्यू इज नथिंग बट सर्विस रेट। दोनों का रेशियो इज नथिंग बट यूटिलाइजेशन फैक्टर। अगर ये रो का वैल्यू 1 से कम आता है इसका मतलब सर्विस प्रोवाइडर एफिशिएंट है बट 100% नहीं है। यानी कि जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनको सर्विस मिलेगा बट 100% एफिशिएंट नहीं है बट सर्विस मिलेगा। लेकिन अगर अराइवल रेट और सर्विस रेट दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, जितने रेट से कस्टमर आ रहे हैं उतना ही रेट से आपको सर्विस मिलते जा रहा है, इसका मतलब जो लाइन है वो फाइनाइट रहेगी, कभी भी एक्सपांड नहीं होगी। लेकिन पहले वाले केस में कैसा, लाइन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने रेट से कस्टमर आ रहे हैं उतने रेट से सर्विस नहीं मिल रहा है। 10 कस्टमर आ गए बट 9 लोगों को सर्विस मिला उतने टाइम में, तो एक वेटिंग क्यू में खड़ा हो जाएगा। फिर सपोज वापस 10 आए तो उसमें से 9 लोगों को सर्विस मिला, ऐसे करके 2 लोगों की लाइन लग जाएगी, ऐसे करके लाइन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बट सबको सर्विस मिलेगा इस केस में अगर लेमडा का वैल्यू म्यू से छोटा है। लेकिन लेमडा और म्यू दोनों अगर इक्वल है यानी सर्विस रेट और अराइवल रेट बोथ आर इक्वल, तो 100 इसका मतलब सिस्टम 100% एफिशिएंट है और फास्ट सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन अगर सपोज दैट रो का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया, यानी कि लेमडा अराइवल रेट और म्यू में लेमडा अगर बहुत ही ज्यादा ग्रेटर हो गया, ऐसे सिचुएशन में सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और उसमें लाइन बढ़ते जाएगी एक्सपोनेंशियल रेट से और किसी को सर्विस एंड में जाके मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज नॉट एफिशिएंट टू कंट्रोल द क्यू। इसमें हम लोग क्यू को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक्सपोनेंशियल रेट से लाइन बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पैरामीटर इज द आइडल टाइम। आइडल टाइम को बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। सपोज दैट आपका जो वर्किंग आवर है, सपोज दैट 9 to 5 में आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका वर्किंग टाइम 9 to 5 है, मतलब 9 o'clock आप पहुंचते हैं और 5 o'clock आप सिस्टम को छोड़ देते हैं। तो इसके बीच में जो टाइम है दिस इज योर वर्किंग टाइम। बट वर्किंग टाइम में आप कितने टाइम तक काम कर रहे हैं और कितने टाइम आप खाली बैठे हुए हैं। जैसे कि बीच में आपको लंच टाइम मिलता है तो 1 आवर का लंच टाइम हो गया, या फिर आपके पास कुछ काम नहीं है और फिर भी आप बैठे हुए हैं सिस्टम में, तो वो जो टाइम है जिसमें आप ऐसा खाली बैठे हुए हैं तो उस टाइम को हम लोग आइडल टाइम बोलते हैं। तो आइडल टाइम का मतलब जो एक्चुअल आपका वर्किंग टाइम है, तो वर्किंग टाइम में से जो वर्क करने का टाइम है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फाइनली आपका आइडल टाइम मतलब वेस्ट टाइम। ऐसा टाइम जिसमें आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, सिस्टम में हो लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब काउंटर पे कोई कस्टमर आया लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने में उसको सपोज 2 मिनट का डिले हो गया, तो वहां सामने वाला जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी है उसको 2 मिनट का टाइम मिल गया, तो 2 मिनट वो मतलब रिलैक्स बैठा है, क्योंकि जो कस्टमर आने वाला है वो किसी कारण से बस वो वहां पे वेट कर रहा है और सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं जा रहा है, तो वहां पे सर्विस प्रोवाइडर 2 मिनट के लिए मतलब उसके पास फ्री टाइम है, तो जो 2 मिनट का फ्री टाइम है दैट इज कॉल्ड एज आइडल टाइम। सो होप सो कि आपको आइडल टाइम समझा रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज कैंडोल नोटेशन और क्यूइंग सिस्टम। तो पूरे क्यूइंग सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, उसके सारे पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए कि वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करें या फिर लेंथ ऑफ क्यू कैसे कैलकुलेट करें, मतलब पूरे सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और क्या क्या मैथमेटिकल मॉडल्स टूल्स होने चाहिए, उसके नोटेशन के लिए कैंडोल साइंटिस्ट ने एक नोटेशन बनाया दैट इज कॉल्ड एज द कैंडोल नोटेशन फॉर द क्यूइंग मॉडल। उन्होंने नोटेशन में 6 पैरामीटर इन्वॉल्व किया, A/B/C is to D/E/F। यहाँ ए क्या है? ए इज नथिंग बट अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, तो ए की जगह हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। बी इज नथिंग बट डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन, कितने रेट से सर्विस प्रोवाइड हो रहा है और वहां पे हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो ए इज नथिंग बट अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन। बी इज मतलब सिस्टम में क्या क्या चीजें लगने वाली हैं वो सारा डेटा को एक जगह कलेक्ट करके लिखना ही कैंडोल नोटेशन होता है।
राइट। कैंडल्स नोटेशन का मतलब सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट को एक साथ कलेक्ट करके लिखना, सो दैट सामने वाला को डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये सिस्टम किस टाइप का है। तो सिस्टम, क्यूइंग सिस्टम किस टाइप का है वो टाइप समझने के लिए यहाँ पे ये नोटेशन यूज किया गया। नोटेशन देखते ही समझ जाएगा कि सिस्टम में कितने सर्विस चैनल है, या इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया गया है, इसमें फाइनाइट कस्टमर को अलाउ कर रहा है या इनफाइनाइट को कस्टमर को अलाउड कर रहा है। ये सारा पैरामीटर को एक ही लाइन में देख के समझ जाए सामने वाला, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ कैंडल्स नोटेशन यूज किया है, जिसमें ए मतलब अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, बी इज नथिंग बट डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन, सी ऑलरेडी मैंने बताया था नंबर ऑफ चैनल्स। अगर मैंने सी की जगह 1 लिख दिया मतलब सिस्टम में एक ही चैनल है, सी की जगह मैंने 2 लिख दिया मतलब सिस्टम में 2 चैनल्स है। तो ये जो A/B/C लिखा हुआ है, इसको देख के डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि किस टाइप का सिस्टम है, इस सिस्टम में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज हुआ है, और इस सिस्टम में कितने नंबर ऑफ चैनल्स है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउ कर सकते हैं। ये सारी चीजें A B C D E F अपने को रिप्रेजेंट करके देता है। तो ए का मतलब हो गया अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, बी का मतलब हो गया डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन, सी इज नथिंग बट नंबर ऑफ चैनल, डी क्या है, डी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अलाउ इन द सिस्टम, इट में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर डी की जगह इनफाइनाइट लिखा है मतलब सिस्टम में इनफाइनाइट कस्टमर आ सकते हैं, और अगर डी की जगह कोई नंबर लिखा है जैसे कि कैपिटल N लिख दिया तो इसका मतलब कि फाइनाइट नंबर ही कस्टमर इसमें अलाउ करेंगे, इनफाइनाइट नहीं करेंगे। तो डी की जगह इट में भी N लिखा जाएगा, कैपिटल N, या फिर डी की जगह इनफाइनाइट लिखा जाएगा। ई की जगह पे हम लोग को लिखना है नंबर ऑफ कस्टमर सर्व इन द सिस्टम, कितने लोगों को सर्विस मिल सकता है सिस्टम में। तो वंस अगेन इट में बी इनफाइनाइट और फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट सिस्टम वाला मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर को ही सर्विस मिलेगा तो वहां पे ई की जगह एन लिखा रहेगा, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है वो सिस्टम, तो वहां पे ई की जगह इनफाइनाइट लिखा। एफ इज नथिंग बट सर्विस डिसिप्लिन। सर्विस डिसिप्लिन इट मे बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, LS/FS मतलब लास्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर SIRO। तो इस तरह से टोटल मैंने आपको 4 पहले ही बताया, तो वहां पे एफ की जगह आउट ऑफ 4 में से कोई एक लिखा जाए। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे शेयर की। तो बेसिकली जो हम लोग आइडियली जो डिजाइन करते हैं वो 3 टाइप का मॉडल होता है। अभी तक 3 टाइप के मॉडल को हम लोग एनालाइज कर चुके हैं। तो फर्स्ट मॉडल में M/M/1 is to infinity/infinity, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, राइट। तो ये हमारे 3 सिलेबस में है, जिसमें मतलब ये 3 टाइप के कैंडल्स नोटेशंस के अकॉर्डिंग ये 3 मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसमें से पहला मॉडल ही हमारे सिलेबस में है, बाकी के मॉडल नंबर 2 एंड मॉडल नंबर 3 नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम लोग 3 मॉडल को समझ लेते हैं। तो M मतलब अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेकंड M है वो भी अराइवल डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन, और जो 1 लिखा हुआ है, दिस 1 इज नथिंग बट नंबर ऑफ चैनल, यानी सिस्टम में एक ही चैनल है। इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ इनफाइनाइट कस्टमर सिस्टम में आ सकते हैं। दूसरा जो इन्फिनिटी लिखा है उसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड हो सकता है, और किस ऑर्डर में सर्विस प्रोवाइड होगा, दैट ऑर्डर इज नथिंग बट FC/FS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट मॉडल में नंबर ऑफ कस्टमर को सिर्फ फाइनाइट कर दिया है, बाकी सारी चीजें एकदम सेम टू सेम वैसे ही दी है। एंड मॉडल 3 में नंबर ऑफ कस्टमर भी इनफाइनाइट है, एंड सर्विस कितने लोगों को सर्विस मिल सकता है वो भी इनफाइनाइट है, लेकिन नंबर ऑफ चैनल इस बार उन्होंने 1 से ज्यादा रखा है, इसलिए सी लिखा है। सी का मतलब 1 से ज्यादा, कोई वैल्यू 2 3 4 लाइक दैट। तो ये 3 मॉडल को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करना है, बट उसमें से एक ही मॉडल आपके सिलेबस में है तो मैं एक ही बताऊंगा। तो मॉडल नंबर 1 पे आते हैं, तो इसको कैंडल्स नोटेशंस के थ्रू पहले चेंज कर लेते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि A इज नथिंग बट A और B बोथ आर द डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया कि ये A के लिए हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, एंड B के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। लेकिन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेचर होता है वो मार्कोवियन होता है। मार्कोवियन मतलब रैंडम होता है, जिगजैग होता है। तो उस रैंडम के लिए हम लोग यहाँ पे मार्कोवियन नेचर की वजह से A की जगह M और B की जगह भी M रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऊपर M/M लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेचर है दैट इज अ मार्कोवियन। मार्कोवियन मतलब रैंडम सर्विस प्रोवाइड, आने वाले कस्टमर का भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, रैंडमली वो आते रहते हैं, और सर्विस जिसको मिलेगा उसको भी ऐसा नहीं कि पहले वाले कस्टमर को 2 मिनट लगा तो नेक्स्ट वाले को भी 2 मिनट लगे, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो इस नेचर की वजह से वहां पे हम लोग M लिखते हैं। C इज नथिंग बट नंबर ऑफ चैनल, दैट इज 1। तो हम लोग जो सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक ही चैनल है, मतलब एक ही विंडो है जिसमें सर्विस मिलेगी। D इज नथिंग बट कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, कितने कस्टमर को सिस्टम में अलाउ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम में आ सकते हैं।
फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट आ सकते हैं, मतलब उसका कोई बाउंड्री नहीं है। एंड कितने नंबर ऑफ कस्टमर को सर्विस मिलेगा वो भी इनफाइनाइट है। और एफ इज नथिंग बट डिसिप्लिन, एफ यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फाइनली मैंने ये क्यूइंग मॉडल जो इन जनरल कैंडल्स मॉडल था ABCDEF, इसमें मैंने ए की जगह M लिखा और बी की जगह भी M लिखा, चैनल एक है इसलिए एक लिखा, और नंबर ऑफ कस्टमर अलाउ इन द सिस्टम इन्फिनिटी इसलिए इन्फिनिटी लिखा, और नंबर ऑफ कस्टमर सर्व इन द सिस्टम भी इन्फिनिटी है तो इधर भी इन्फिनिटी लिख दिया। और जो डिसिप्लिन ऑर्डर है F, दैट इज FCFS, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप का बताया था, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, लास्ट कम फर्स्ट सर्विस एंड रैंडमली और जनरल, उसमें से यहाँ पे पहला लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा एक मॉडल रेडी हुआ। अब इस मॉडल के अंदर हम लोग को क्या क्या पैरामीटर चाहिए, सबसे पहले इस सिस्टम में कितने कस्टमर प्रेजेंट है उसके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, कितने लोगों को सर्विस मिल रहा है उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। आफ्टर दैट सिस्टम लेंथ कितना है, क्यू लेंथ कितना है, यानी LS LQ WS WS, ये सारे पैरामीटर हम लोग को कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है, और बाद में इसी मॉडल के ऊपर कुछ 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मॉडल, पहले आप इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करो, क्योंकि ये सारा पैरामीटर आगे लगने वाला है। Okay, so you have to discuss in the first model MM1 infinity FCFS. So this is your model number 1. So in this model, following mathematical notation will be used to connecting the above models. Number 1, N is nothing but number of customer in the system. System is वेटिंग लाइन एज वेल एज सर्विस फैसिलिटी, जितने लोग लाइन में खड़े हैं, जितने लोगों को सर्विस मिल रहा है, दोनों को ऐड करके दैट इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, जिसको हम लोग N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेमडा क्या है, ऑलरेडी यू नो व्हाट इज लेमडा। लेमडा इज द मीन और एक्सपेक्टेड अराइवल रेट, नंबर ऑफ अराइवल पर यूनिट टाइम, मतलब 1 पर टाइम में कोई 1 सेकेंड या फिर 1 आवर या फिर 1 मिनट के अंदर सपोज दैट कितने कस्टमर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अराइवल रेट। सपोज दैट 1 मिनट में 20 कस्टमर आ गए तो 20 per minute, this is called as lambda, right? Mu is nothing but mean or expected service rate। one time में 1 यूनिट टाइम में कितने कस्टमर्स को सर्विस मिल रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज 30 कस्टमर को 1 मिनट में सर्विस मिल रहा है, तो 30 पर मिनट इज नथिंग बट म्यू। ओके, अभी यहाँ पे लेमडा टी लिखा है, लेमडा टी इज नथिंग बट probability that an arrival event system between T2 T plus T time। अब इसको आप समझ के लिए प्रॉपरली, ओके, तो सपोज दैट ये मैं एक टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, ये T o'clock और ये T plus DT o'clock। फॉर एग्जाम्पल ये 10 o'clock और ये 10.1 o'clock, तो इसके बीच में कितने कस्टमर आ रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको बोलते हैं अराइवल रेट। तो ये टाइम डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है। अगर ये टाइम 10 o'clock है और ये 10.1 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ कि नहीं, 0.1। अंडरस्टूड। उसी तरीके से यहाँ पे अगर इस टाइम को T बोल रहे हैं, इस टाइम को T प्लस डेल्टा T बोल रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे T प्लस DT माइनस T, तो T कट जाएगा, फाइनली बचेगा DT, और आने वाले कस्टमर का जो अराइवल रेट है दैट इज द लैम्डा। तो दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सो लैम्डा DT is nothing but probability of arrival customer in this time interval। इस टाइम के अंदर कितने कस्टमर आ रहे हैं उसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज लैम्डा टी। ये पैरामीटर आपको समझ में आया क्या, बोलो, ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? लैम्डा dt is nothing but probability that an arrival enters the system between T2 T plus dt। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं तो मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर एक बार वापस करो। ओके, 1 सेकेंड सर फिर से देखो, अराइवल रेट लैम्डा है, आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जरा आप उसको थिंक करो, इमेजिन करो। सपोज दैट 10 o'clock पे आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है ना, या 10 to 11 पकड़ लो, अब बेटर रहेगा अगर आपको 10.1 नहीं समझ रहा है। बिकॉज मैंने 1 क्यों लिया था, बिकॉज वो बहुत ही स्मॉल टाइम ड्यूरेशन है। आपको एनालाइज करना है 10 o'clock, सपोज दैट 10 o'clock से लेके 10.5 o'clock तक
एनालाइज करना है कि इतने टाइम इंटरवल में कितने कस्टमर आ रहे हैं। अराइवल रेट, कस्टमर आने का जो रेट है वो लैम्डा है, वो ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया पहले लाइन में। मुझे आप बता सकते हो ये टाइम इंटरवल कितना है, ये दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप है? 5 मिनट। 5 मिनट। तो अगर मुझे नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम में 5 मिनट में कितने आ रहे हैं, वो मुझे अगर अगर 1 मिनट में लैम्डा आते हैं तो 5 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे? 1 मिनट में सपोज दैट 10 कस्टमर आते हैं तो 5 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे? 50 आएंगे। अब उसी को थोड़ा फॉर्मुलेट करते हैं। 1 मिनट में लैम्डा कस्टमर आ रहे हैं तो 5 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे? 5 लैम्डा। 5 लैम्डा। तो dt टाइम में कितने कस्टमर आएंगे? लैम्डा dt। लैम्डा dt, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे मल्टीप्लाई करते जाना है, राइट? यस सर। अगर ये 10 को हटा के मैं t लिखता हूँ और इसको मैं t प्लस dt लिखता हूँ तो दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना है? इन दोनों का डिफरेंस लो ना, इसका डिफरेंस -10, तो dt कट जाएगा, dt बचेगा कि नहीं? तो ये टाइम इंटरवल कितना है? dt है। तो dt इंटरवल में कितने कस्टमर आएंगे? लैम्डा dt, वो आपने पहले ही मुझे बताया, यहाँ पर यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। होप सो अभी समझ में आ रहेगा। यस सर। यस। ओके, तो अगर ये लैम्डा dt आने वाले का चांसेस है तो उस टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में अराइवल नहीं आने के चांसेस क्या होगा? तो फेलियर प्लस सक्सेस इक्वल टू 1 होता है, राइट? प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है। तो अगर सक्सेस को लैम्डा t से लिखा है, लैम्डा dt से लिखा है, तो फेलियर को क्या लिखेंगे? 1 माइनस लैम्डा dt। यस, तो अगर ये आने वाले का टाइम है तो ये नहीं आने वाले का टाइम प्रोबेबिलिटी हो गया। क्लियर हुआ? ये सारे पैरामीटर आप समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस। ये सब अराइव कस्टमर आने की जो चांसेस है, लेकिन टाइम इंटरवल इंपॉर्टेंट है। dt टाइम इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में कितने कस्टमर आ रहे हैं? लैम्डा dt। इसी टाइम इंटरवल में कितने कस्टमर नहीं आ रहे हैं? तो 1 माइनस लैम्डा dt। नेक्स्ट है उसी तरीके से, जिस तरीके से कस्टमर आने का हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, उसी तरह से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने का भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आने वाले का प्रोवाइडर रेट है लैम्डा और सर्विस मिलने का रेट अगर म्यू है, तो जो कुछ लैम्डा के साथ कर रहे हैं तो वही म्यू के साथ करेंगे। तो Yes, म्यू sir. dt ये क्या है? दैट इज द प्रोबेबिलिटी जिनको सर्विस मिल रहा है, और 1 माइनस म्यू dt क्या है? ऐसे लोग जिनको सर्विस नहीं मिल रहा है। तो ये चीज हमने आगे वाले टर्म्स में लिखा है। लेकिन टाइम इंटरवल क्या है? dt, याद रखना है। ये जो कुछ भी कैलकुलेशन हो रहा है dt टाइम इंटरवल में। बोलो, यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है? सबको यूज करेंगे आगे जाके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट pn। pn क्या होता है? सिस्टम में n कस्टमर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज कॉल्ड एज pn। और pn और pnt में डिफरेंस क्या है? एक pn लिखा है मतलब स्टेडी स्टेट है, आई मीन सिस्टम में नंबर ऑफ कस्टमर फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर कस्टमर बदलते जा रहे हैं एवरी इंस्टेंट पे, मतलब ये सिस्टम है, सपोज इसके अंदर 10 कस्टमर है, थोड़ी देर के बाद 11 हो गए, तो हर एक टाइम पे इसमें कस्टमर कितना है? t टाइम में इसमें कितने कस्टमर है? दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ t। और सपोज दैट t टाइम में n कस्टमर है तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ t ऑफ n कस्टमर। ये नोटेशन का ये मतलब है, आपको सिर्फ नोटेशन समझ के लेना है कि टी टाइम पे सिस्टम में कितने, 10 ओ क्लॉक में, 10 ओ क्लॉक आपने टाइम देखा वॉच में तो 10 ओ क्लॉक हो रहा था, और उस टाइम में आपने देखा सिस्टम में 20 कस्टमर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 20, राइट? इसके लिए वो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है, मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट? तो इस तरीके से आपको टी टाइम में, या फिर इस 20 को हटा देता हूँ मैं, 10 ओ क्लॉक पे प्रोबेबिलिटी अगर सपोज 0.2 है, मतलब कस्टमर आने का चांसेस 0.2 है, राइट? तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे P और 20 कस्टमर आने का चांसेस, यानी P20 ऑफ T यानी 10 ओ क्लॉक, आंसर इज 0.2, राइट? तो ये नोटेशन का ये मतलब है कि सिस्टम में T टाइम पे कितने कस्टमर आ रहे हैं, उनके चांसेस क्या है। T टाइम मतलब 10 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक में सिस्टम में आने के कितने नंबर ऑफ कस्टमर आ रहे हैं, उनके चांसेस, उसको हम लोग लिखेंगे Pn ऑफ T से, राइट? ये सब नोटेशन आप समझ के लो, क्योंकि आगे लगेगा ये। Pn प्लस 1 ऑफ t सेम मीनिंग है, जैसे पहले Pn ऑफ t बताया वैसे Pn प्लस 1 है। सिस्टम में सपोज n प्लस 1 कस्टमर आ रहे हैं एट 10 ओ क्लॉक, t का मतलब 10 ओ क्लॉक पकड़ के चलो आप, 10 ओ क्लॉक
जब वॉच में आपने देखा टाइम 10 o'clock, वो टाइम पे कितने लोगों को सर्विस मिल रहा है और कितने लोग लाइन में खड़े हैं, वो सारे कस्टमर मिला के इज n. अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड एज अ Pn of t. Pn plus of t मतलब व्हाट? n plus 1 कस्टमर प्रेजेंट है. Pn minus 1 मतलब n minus 1 कस्टमर प्रेजेंट है. ये तीनों चीजें एक ही है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा है, बिकॉज आगे जाके ये यूज होने वाला है. अभी तक ये टी टाइम पे डिस्कस हो रहा था. अब जो अगला कंसेप्ट है वो टी प्लस डी, मतलब 10 o'clock की जगह पे 10.5, यानी 10 o'clock और 5 मिनट के बाद कितने कस्टमर सिस्टम में प्रेजेंट है. सपोज n सिस्टम कस्टमर सिस्टम में प्रेजेंट है, तो उसके प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखेंगे Pn of t plus dt. तो ये सारे नोटेशन का क्या मीनिंग है वो समझ के लेना बहुत जरूरी है. LQ तो आपको पहले से बताया था, LS भी बताया, WQ WS ऑलरेडी आपने लिख लिया है. ओके, अभी जितने भी पैरामीटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये सब आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेंगे. So your target is calculate the probability of n number of customer in the system at t plus dt time. Okay, so suppose that अभी ये मैं फॉर एग्जांपल एक 10 o'clock एज्यूम करके चल रहा हूँ. 10 o'clock में सिस्टम में n कस्टमर है और किसी को भी सर्विस नहीं मिल रहा है और ना ही कोई आ रहा है, तो टोटल सिस्टम में कितने कस्टमर हुए? n. यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ n, कोई आ भी नहीं रहा है, किसी को सर्विस भी नहीं मिल रहा है, तो फाइनली रिजल्ट इज n. आप यूं समझ लो कि ये इन दोनों को ऐड करना है, या जो कुछ भी लिखना है इन दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से इसको ये जीरो को सब्ट्रैक्ट कर ले और रिजल्ट n आना चाहिए. राइट? तो सपोज दैट एक कस्टमर अराइव हुआ, तो सिस्टम में कितने कस्टमर हो जाएंगे अभी? n plus 1, क्योंकि एक अराइव हो गया ना. बट ये सपोज दैट जो अभी आया और उसके पहले दूसरा कस्टमर सर्विस के लिए चला गया, तो अब सिस्टम में कितने कस्टमर बचे? आप इन दोनों को ऐड करो, तो n plus 1 ऐड करके n plus 1 लिख दिया मैंने ऑलरेडी. राइट? इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा? तो आपको ये पॉसिबिलिटी निकालना है कि सिस्टम में n कस्टमर, उसके लिए क्या क्या चांसेस है. अंडरस्टूड? अभी सिस्टम में n-1 कस्टमर है और एक कस्टमर अराइव हुआ और किसी को भी सर्विस नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? n. दोनों मैं बोला ना, इन दोनों को ऐड करना है. ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है. रीजन क्या है? ये सिस्टम में ऑलरेडी n plus 1 कस्टमर मैंने लिया है और एक कस्टमर अराइव हो गया, तो ऐड करेंगे तो n plus 2 हो जाएगा, इसको जीरो लेना पड़ेगा. दिस इज अ स्मॉल मिस्टेक. अब करेक्ट है. आपको ये दोनों कॉलम को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे आंसर आता जाएगा. उस तरह से सेट करना है और आंसर n ही आना चाहिए. तो सिस्टम में n कस्टमर है, पहला केस, जीरो अराइव हुआ, जीरो सर्विस मिल रहा है, तो फाइनल रिजल्ट इज n. क्योंकि अब 0 plus n करोगे, पहला दोनों कॉलम को ऐड किया तो n आया, और फिर सेकेंड इन दोनों कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया तो भी n आया. यहाँ 0 है, यहाँ n plus 1 है, ऐड करोगे तो n plus 1 आएगा, उसमें से 1 माइनस किया तो आंसर अगेन n. यहाँ 1 है और यहाँ n minus 1 है, ऐड करके बोलो रिजल्ट क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? स्टूडेंट, आपको सुनाई दे रहा है? यस. हाँ, तो ये दोनों को ऐड करो ना, 1 plus n minus 1, इन दोनों का रिजल्ट n बोलो. n, और उसमें से 0 माइनस करो, आंसर क्या आएगा? n. वही लिख. चलो, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, आंसर n आना चाहिए. और कोई पॉसिबिलिटी सोचो. बट एक एक कस्टमर आ सकता है, क्योंकि अपना सिस्टम का एक ही अलाउ है, नंबर ऑफ सर्विस चैनल एक ही है. तो एक कस्टमर आएगा, एक कस्टमर को सर्विस मिलेगा. दो के बारे में मत सोचना कि सर 2 कस्टमर आ गए, 2 लोगों को सर्विस मिला तो सब्ट्रैक्ट नहीं. 2 पे बात ही नहीं करना है, जो भी प्ले करना है 1 पे प्ले करना. तो और कोई पॉसिबिलिटी है आपके माइंड में? कोई पॉसिबिलिटी आ रही है तो बताओ स्टूडेंट्स. देखो, मैंने यहाँ पे 0 अराइवल लिया, 0 सर्विस लिया, 0 अराइवल किया, 1 को सर्विस किया, 1 अराइवल 0 सर्विस. अगला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? 1-1. 1-1. तो यहाँ सिस्टम में कितने कस्टमर रहेंगे? यहाँ पर, यहाँ बीच में क्या लिखूं? n लिखूं या n plus 1 लिखूं? यहाँ पे n लिखना चाहिए, n plus 1 लिखना चाहिए? बताओ.
N. N. बिकॉज जब दोनों को ऐड करोगे तो n+1 होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? n आएगा। Yes, sir. पूरी बात समझ में आई? हाँ। once again एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपको समझ गया है कि किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। सारा पॉसिबिलिटी आप स्टार्ट में ही बना लो, फिर नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम में ऐड करो, रिजल्ट n आ जाएगा। इधर 0 0 किया, 0 अराइवल, 0 कस्टमर को सर्विस मिल रहा है, तो सिस्टम में कितने होने चाहिए? n। 0 अराइवल है सिस्टम में, एक को सर्विस मिल रहा है, इधर क्या लिखूं? N+1. n+1, बिकॉज दोनों का सब्ट्रैक्ट करके याद रखना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस है माइनस है। यहाँ पे 1 कस्टमर अराइवल है, 0 को सर्विस मिल रहा है, इधर क्या लिखना है बोलो? N-1. n-1, क्योंकि रिजल्ट हर बार n ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन। हम लोग का टारगेट ये है, ये कैलकुलेट करना इज आवर टारगेट। तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या लिखूं? N. n, बिकॉज n+1 में से 1 निकल गया, आंसर वंस अगेन n। तो होप सो आपको ये समझ में आ रहेगा। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन t plus dt टाइम। अंडरस्टूड? तो हर एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं। यहाँ तक सब लोग समझ में आए? Yes. sir. अब हर एक Yes, इवेंट sir. को लिखते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड। ओके, so finally answer is p of n t plus dt time. What is answer? First possibility यानी event 1, second possibility यानी कि event 2, this is event 1, event 2, event 3, event 4, उसको मैं शॉर्ट में e1 e2 e3 लिख रहा हूँ। This is event 3 and this is event 4. Now calculate one by one event 1, event 2, event 3 and event 4 one by one. First of all you have to calculate event 1. So yes, number of arrival in time dt, इसका probability क्या लिखते हैं? नो अराइवल है ना, 0 है। नो अराइवल के लिए आंसर क्या लिखते हैं? आपको लिख के दिया है मैंने ऑलरेडी। नो अराइवल का चांसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल, आपने ये लिखा ना ये सब कुछ? मुझे नहीं लगता कि आपने लिखा है, लिखा होता तो आप आंसर बताते। यही तो बताना है आपको, ये अराइवल का है, ये नो अराइवल का है, ये सर्विस का है, ये नो सर्विस का है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर, प्रोबेबिलिटी ऑफ n+1 कस्टमर, n-1 कस्टमर, n+, ये सब कुछ आपको पता है ना इन्हीं के टर्म में। तो कोई भी अराइवल नहीं है तो आंसर क्या लिखोगे? लैम्डा 1 टी। minus lambda t. वही आपको मैं पूछ रहा था, बोलो। 1 minus देखो ये lambda t. मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिख के रखा है जिसमें आपको 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो मैं 1 by 1 एक एक कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो p ऑफ e1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिसका ये चांसेस है। यहाँ पे देखो ये चांसेस बना के रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये चांसेस मैंने बना के रखा है, राइट? इसी को हम लोग को डील करना है। तो 0 कस्टमर अराइव इन द सिस्टम, तो व्हाट इज द चांसेस ऑफ दैट? दैट इज लैम्डा टी, लैम्डा dt। अंडरस्टूड? तो सिस्टम में कितने कस्टमर अवेलेबल है? n कस्टमर अवेलेबल है। n कस्टमर के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? Pn ऑफ t लिखते हैं कि नहीं? और 0 को सर्विस मिल रहा है यानी 1 माइनस म्यू dt, यहाँ गलत हुआ है, ये 1 माइनस लैम्डा टी होगा, राइट? ये पूरे बात समझ में आए कि नहीं? वापस बोलो, मैं समझा सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो वापस से ओके, आपको फर्स्ट इवेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फर्स्ट इवेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? इवेंट 1, राइट? ये है इवेंट 1, इसमें क्या है? 0 अराइवल है, राइट? ये तो समझ रहा है। और सिस्टम में टी टाइम पे कितने कस्टमर है? n कस्टमर है, और कितने लोगों को सर्विस मिल रहा है? 0, यानी नो अराइवल, नो सर्विस और n कस्टमर। तो नो अराइवल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं? 1 माइनस लैम्डा dt, आपने लिख के रखा है स्टार्ट में। और n कस्टमर है सिस्टम में, उसके लिए आप क्या लिखेंगे? Pn ऑफ t। और नो सर्विस मिल रहा है उसके लिए आंसर क्या होगा? 1 माइनस म्यू dt। बोलो, अभी क्लियर है? Yes, sir. चलेगा। दूसरा इवेंट लिखो, इवेंट 2 के लिए बताओ। PE2, सिस्टम में कितने कस्टमर को सर्विस मिल रहा है? अराइवल रेट क्या है? नो 1 अराइवल, minus 0। 1 minus 0 अराइवल के लिए लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा dt। सिस्टम में कितने कस्टमर अवेलेबल है? n+1 t, है ना? n+1। Yes, sir.
एंड सर्विस कितने लोगों को मिल रहा है? 1. 1. तो 1 माइनस नहीं होगा, सिर्फ म्यू dt होगा। ये क्लियर? Yes, sir. Yes, चलो sir. नेक्स्ट E3 लिखो, P of E3, थर्ड इवेंट Lambda dt. Lambda dt. lambda dt, very good. P Customer n number minus n minus 1 of t into 1 minus mu minus mu dt. dt. UD. Very good. Last chance. Yes, P4 Lambda dt. Lambda dt. lambda dt P n of P n t of t and and mu mu dt. dt. UDT. Understood? Yes, sir. Yes. Yes, Okay, sir. very good. अब ये 1 by 1 जो लिखा है ना, इसमें से पहला वाला लिखता हूँ once again. सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अभी एक एक को सिंप्लीफाई करेंगे. So once again let P of E1, इसको मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ. So 1 minus lambda dt, उसको वापस मैंने लिख दिया into Pn of t into 1 minus mu dt. ब्रैकेट ओपन करते हैं, जिसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको साइड में लिख देंगे. तो ये हो गया 1 into 1 1 into mu dt यानी mu dt माइनस lambda mu dt स्क्वायर प्लस, नहीं गलत कर दिया क्या? नहीं बराबर है. 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 लिखा, 1 के साथ lambda हो गया, ये एक टर्म मिस हो गया, प्लस lambda dt जो मुझे पहले लिखना चाहिए था, और पूरा ब्रैकेट क्लोज करके लास्ट में Pn of t. ये ब्रैकेट में कहीं कोई डाउट है तो बोलो, नहीं वापस एक्सप्लेन करता हूँ. Sir, minus lambda dt आएगा. ओके, माइनस lambda dt आएगा. करेक्ट. एनी डाउट? यस या नो? No. ओके. अब देखो, ये dt मैंने आपको बताया था कि वेरी स्मॉल टाइम है, बहुत ही छोटा टाइम है. सपोज दैट 0.001 टाइम इंटरवल की बात हो रही है. अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 0.00001 आएगा कि नहीं? Yes. बोलो. इसका मतलब स्क्वायर करने के बाद वो क्वांटिटीज हम ऑलमोस्ट टेंस टू 0 हो जाती है, तो आप dt स्क्वायर की जगह 0 पुट कर देंगे. तो फाइनली ये आंसर होगा 1 माइनस mu dt माइनस lambda dt इनटू ब्रैकेट दैट इज Pn of t. इसको मैंने 0 ले लिया, एक्चुअली dt स्क्वायर को 0 लिया, पूरा टर्म 0 हो गया. तो ये फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द E1. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इवेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में सबको ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा. नेक्स्ट इवेंट क्या है? PE2. टेल मी, दैट इज दिख नहीं रहा है. 1 माइनस lambda dt 1 minus lambda dt then Pn plus 1 t and mu dt, right? Pn plus 1 of t into mu dt. जस्ट ब्रैकेट ओपन करके आप साइड में लिख दो. So that will be, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके बोलेंगे तो mu dt, क्लियर है? माइनस lambda mu dt स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये Pn plus 1 of t मैंने साइड में लिख दिया. ये वंस अगेन 0 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या बना? mu dt into Pn plus 1 of t. बोलो, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes. नाउ थर्ड इवेंट P of E3, पहले नोट डाउन करते हैं. E3 का lambda dt Pn minus 1 t and 1 minus mu dt. Lambda dt Pn minus 1 of t into 1 minus mu dt. Open this bracket. इसको इससे मल्टीप्लाई करो. Lambda mu dt square. तो पहले lambda dt आएगा, माइनस lambda mu dt का स्क्वायर बनेगा, और ये इसको मैं साइड में लिखता हूँ Pn minus 1 of t ब्रैकेट के अंदर. ये क्लियर हुआ? ये टर्म 0 होगा, तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? lambda dt Pn minus 1 of t. This is the P of E3. Any doubt? No, sir. No. Now simplify the E4 वाला टर्म. E4 वाला टर्म क्या है देखते हैं. PE4, this is equal to, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्या लिखे. बोलो, lambda dt Pn of t mu dt, राइट? तो उसको मैं वापस से लिख देता हूं यहाँ पे, फिर बाद में सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचते हैं. lambda dt Pn of t into mu dt. यहाँ कोई ब्रैकेट है नहीं, तो lambda mu dt स्क्वायर into Pn of t. dt स्क्वायर का वैल्यू 0, तो फाइनली कंप्लीटली 0. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो होप सो कि आपको ये पूरी बात समझ में आई रहेगी.
तो फाइनली हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे? यस, आवर टारगेट इज कैलकुलेट द n customer in t plus dt time. So there are four possibility: p of e1 plus p of e2 plus p of e3. सबको ऐड कर लेंगे बिकॉज ऑल इवेंट आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कोई एक दूसरे पे कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो मैं वापस से दिखा देता हूँ आपको, ये मैं लिख दिया वापस से, ये आपको दिख रहा है, ये करली ब्रैकेट वाला टर्म, दिस टर्म का पूरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, क्लियर? अब इसमें e1 e2 e3 का जो सिंप्लीफाइड वैल्यूज है वो 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पी एन, अभी बोलो पी ऑफ E1 का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया? तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बिकॉज आपने नोट डाउन तो किया नहीं है। सो देख लेते हैं पी ऑफ E1 कितना आंसर है, बोलो ये 1 minus mu dt. यस 1 माइनस म्यू डी टी माइनस लेमडा डी टी पी एन ऑफ टी, करेक्ट। तो मैं लिखता हूँ वहां पर 1 माइनस म्यू डी टी माइनस लेमडा डी टी इंटू पी एन ऑफ टी। पी एन ऑफ टी था या पी एन प्लस 1 था? पी एन ऑफ टी था, करेक्ट। तो मैंने वो सारा इंफॉर्मेशन वहां से ले जाके नोट डाउन कर लिया, प्लस पीई2। पीई2 देखो क्या है, चेक करते हैं पीई2 का वैल्यू, देखो दिख रहा है पीई2 का वैल्यू Mu dt Pn plus pn plus 1 of t, mu dt pn plus 1 of t एंड pe3 दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा है lambda dt pn minus 1 dt, lambda dt pn minus 1 of t एंड p4 कितना है, p of e4 कितना है, 0। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. yes sir. डाउट? No. यस, और डिराइव कर लेते, बाद में आप नोट डाउन कर लेना, डोंट वरी। अभी ये pn of t को सिंप्लीफाई करते हैं। pn of t ब्रैकेट ओपन करके लिखता हूं मैं 1 by 1, pn of t माइनस म्यू dt pn of t माइनस लेमडा dt pn of t। बोलो यहाँ तक क्लियर? ब्रैकेट को ओपन कर दिया, फिर ये हो गया म्यू dt pn प्लस 1 of t एंड प्लस लेमडा dt pn माइनस 1 of t। होप्स कि आपको ये समझा रहेगा। अब ये जो p n of t है ना, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, pn t प्लस dt, तो ये उधर जाके माइनस हुआ, और जो रेस्ट पार्ट है उसको कंप्लीटली लिख दिया मैं, उसको मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ, सेम टू सेम, माइनस म्यू dt pn of t माइनस लेमडा dt pn of t प्लस म्यू dt pn प्लस 1 of t एंड प्लस लेमडा dt pn माइनस 1 of t। बोलो सब कुछ लिख दिया मैंने ए टू जेड? ओके, अब दोनों साइड में dt से डिवाइड करो। नाउ dt से डिवाइड करो, क्योंकि हर एक टर्म में dt है, आप देख रहे हो, तो dt कट जाएगा, डिवाइड बाय dt। तो मैंने लेफ्ट में डिवाइड बाय dt किया, तो आपको राइट साइड में भी डिवाइड बाय dt करेंगे, तो राइट साइड में हर एक टर्म में dt है, तो dt कट जाएगा। बोलो आंसर क्या आएगा? Minus mu प्लस Pn of लेमडा t. इनटू pn ऑफ t। मैंने pn कॉमन ले लिया इसमें और इसमें से, और dt कैंसिल हो गया, प्लस म्यू pn प्लस 1 ऑफ t प्लस लेमडा pn माइनस 1 ऑफ t। होप्स हो कि आपको ये समझा रहेगा? Yes, sir. Yes. एनी डाउट? No, sir. क्लियर? अब यहाँ पे एक एजम्पशन है, ये जो वैल्यू है ना, ये 0 होगा। कुछ लोगों को समझेगा, कुछ लोगों को नहीं समझेगा। जो टेक्निकल स्टूडेंट है उनको समझ जाएगा, क्योंकि दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का नाम सुना है आपने? Yes sir. Yes, ठीक sir. है, तो जो लोगों ने डिफरेंशिएशन का नाम सुना है उनके लिए आपको मालूम है कि दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ pn ऑफ t। दिस इज द डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, बट कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो भी चलेगा। कुछ जब पहले नहीं सुना है तो अभी समझ के कोई फायदा नहीं, आप उसको मेमोराइज भी कर सकते हो।
बाकी मैंने इंफॉर्मेशन एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। स्टार्ट में मैंने बताया था ये जो Pn है, दिस इज द स्टडी स्टेट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब सिस्टम में नंबर ऑफ कस्टमर 4 वे से हमने फाइंड आउट किया, तो अगर हम ये एज्यूम के चलें कि सिस्टम स्टेबल है, सिस्टम कांस्टेंट हो गया है, अगर ये एज्यूम करके चलते हैं कि सिस्टम में नंबर ऑफ कस्टमर n फिक्स है एट अ टाइम, अगर ऐसा एज्यूम करके चलते हैं तो ये Pn कांस्टेंट हो जाएगा, और कुछ लोगों को मालूम रहेगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो फाइनली ये पूरा का पूरा टर्म अगले स्टेप में 0 होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने के लिए, बट कोई बात नहीं, थोड़ा आप उसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो फाइनली मैं उसकी जगह 0 लिखने वाला हूँ, और जैसे मैं इसको 0 इधर लिख दिया, ये आगे क्या क्या होगा, म्यू प्लस लेमडा इंटू Pn ऑफ टी प्लस म्यू Pn प्लस 1 ऑफ टी n प्लस लेमडा Pn माइनस 1 ऑफ टी। अगर मैं इस टर्म को लेफ्ट में ट्रांसफर करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, म्यू प्लस लेमडा इंटू Pn ऑफ टी प्लस म्यू Pn प्लस 1, सॉरी ये प्लस नहीं, बीच में इक्वल टू है क्योंकि वो दोनों टर्म तो उधर ही रहने वाले हैं, प्लस लेमडा Pn माइनस 1 ऑफ टी। तो बोलो ये डेरिवेशन सबको समझ में आ गया? दैट इज द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, समझाइए, बोलो। तो n इक्वल टू, अभी वही तो समझा रहा था इतना देर से, अभी n इक्वल टू 1 पुट करके बोलो आंसर क्या आएगा, लेमडा म्यू प्लस लेमडा P1 ऑफ t, दिस इज इक्वल टू mu P2 of t plus lambda हाँ just correct, then mu P2 of t plus lambda P0 of t, अंडरस्टूड? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट करूं तो इधर 2 आएगा और इधर P1 आएगा, तो ऐसे 1 2 3 पुट कर, आप समझ रहे हो इसमें? जैसे कि आपको 2 कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 0, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा, क्योंकि 0 आपको मिल जाएगा तो आप 0 का पुट करके P1 निकाल सकते हो, फिर P1 मिल गया तो P2 मिल जाएगा, ऐसे करके चलते जाएगा। तो आपको अभी अगले स्टेप में ये P0 कैलकुलेट करके लाना है, यानी सिस्टम में 0 कस्टमर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बहुत सिंपल है। 0 कस्टमर के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, सिस्टम में 0 कस्टमर है, जो मैंने पहले प्ले करना सिखाया था अभी वापस प्ले करना है, तो 0 कस्टमर, यहाँ पे 0 मेंटेन करा, और फाइनली इधर 0 होना चाहिए, राइट। तो सिस्टम में 0 है एंड 0 अराइवल, क्लियर। दूसरा 1 अराइवल, आगे बोलो पॉसिबिलिटी, इधर 0 होना चाहिए, आप लोग यहाँ तक कंफर्टेबल हो या नहीं हो? जैसे आप लोगों ने n कस्टमर के लिए कैलकुलेट किया, वैसे आपको 0 कस्टमर के लिए कैलकुलेट करना है। सर दोनों जगह पे 1 आएगा। ठीक है, अगर सिस्टम में 0 अराइवल 0 है और नंबर ऑफ कस्टमर इन टी टाइम वो भी 0 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्लियर। Yes, sir. अगर सपोज दैट एक को सर्विस मिल रहा है और सिस्टम में 0 है, तो अराइवल कितना होना चाहिए, 0, आंसर क्या आएगा? ये क्लियर हुआ क्या? नहीं, ये यहाँ पे गलत हुआ ना, हाँ सर, सर्विस कैसे मिलेगा इधर? इधर 1 होगा, हाँ सर। तभी तो 1 - 1 0, ये क्लियर है। तो देयर आर 2 इवेंट, आप फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताओ। 0 अराइवल मतलब 1 माइनस लेमडा dt, क्लियर, याद आ रहा है आप लोगों को? Yes sir, yes sir. यस सर। एंड 0 कस्टमर इन द सिस्टम
दैट इज P0 of t. P0. ये क्लियर है? चलो इवेंट 2 का बताओ. जीरो अराइवल है. 1 minus minus lambda lambda dt. Lambda dt. सिस्टम में 1 कस्टमर प्रेजेंट है P1 है. P1. और एक को सर्विस मिल रहा है. Mu dt. पहले वाला तो सिंपल है, दूसरे वाले को सिंपलीफाई करना है. Yes, इसको sir. इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू dt माइनस लैम्डा म्यू dt का स्क्वायर Square. करेक्ट इनटू P1 of t. ये टर्म 0 हो जाएगा. तो फाइनली बचा क्या? Mu dt into P1 of t. हाँ, तो म्यू dt इंटू P1 of t. बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो टोटल आंसर क्या होगा? P0 of t plus dt टाइम दैट इज इक्वल टू P of event 1 and plus P of event 2. इवेंट 1 के लिए आंसर है 1 minus lambda dt into P0 of t and इवेंट 2 का आंसर है म्यू dt into P1 of t. क्लियर? ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं. सो P0 of t minus lambda dt P0 of t plus mu dt P1 of t that is P0 of t plus dt. इस टर्म को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं. सो P0 of t plus dt minus P0 of t. What is answer? Minus lambda dt P0 of t plus mu dt P1 of t. फिर dt से डिवाइड कर रहा हूं सो दैट ये डेरिवेटिव बन जाए और उसका कंडीशन डाल के 0 कर दिया जाए. dt से मैं अलग से डिवाइड किया तो राइट साइड में भी डिवाइड होगा. सो lambda P0 of t plus mu P1 of t. This term is the derivative and for stable system that is 0. तो डायरेक्टली 0 लिखो उसको. 0 equal to minus lambda P0 of t plus mu P1 of t. So what is the value of P1 of t? So P1 of t is nothing but lambda P0 of t divided by 2. Clear? Yes, sir. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना इसको इक्वेशन नंबर 1 बता देता हूं. अब दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके हम लोगों को P1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है. यस, तो ये पहला इक्वेशन पहले मैं वहां पे लिखता हूं. फ्रॉम 1 and 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. फ्रॉम 1 क्या है 1 का इक्वेशन देखते हैं. सो बोलना इक्वेशन 1 क्या है? लैम्डा प्लस म्यू P1 of t म्यू P2 of t लैम्डा P0 of t. जरा आप इसको नोट डाउन कर लो तो 30 सेकंड में सो दैट मुझे आप वहां बता सको. इक्वेशन 1 नोट डाउन दिस. इक्वेशन 1 कर लिया? डोंट इक्वेशन 1 नोट डाउन. Yes. ओके, तो अभी मुझे बताओ जरा इक्वेशन 1 क्या लिखा. यस, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 Mu plus lambda म्यू प्लस लैम्डा इनटू P ऑफ P. Pn of t. P1 है क्या है? P2 है? 1. P1 है sir. P1 of t. आगे Equal to mu P2 of t plus lambda P0 of. ओके. अभी आप यहाँ पे क्या करो, ये इक्वेशन 2 की हेल्प से जो P1 निकाला है ना वो सब्स्टिट्यूट करो. तो फ्रॉम 2 P1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. बोलो म्यू प्लस लैम्डा इंटू P1 कितना है? लैम्डा बाई म्यू P0 राइट इक्वल टू म्यू P2 प्लस लैम्डा P0. बोलो क्लियर है? Yes, sir. इस ब्रैकेट को ओपन करो अभी. सो म्यू और म्यू कट जाएगा, लैम्डा P0 बचेगा प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू P0 इक्वल टू म्यू P2 प्लस लैम्डा P0. ये लैम्डा P0 कैंसर. बोलो यहाँ तक क्लियर है?
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? P2 का वैल्यू क्या मिला? ये म्यू को वापस डिवाइड करो, सो लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू का स्क्वायर इनटू P0। और आपको पहले ही मैंने बताया, लिख के लिया आपने, लैम्डा अपॉन म्यू को क्या बोलते हैं? रो ट्रैफिक इंटेंसिटी। याद है क्या? बोलो, लिख के लिया है ना आपने? लैम्डा अपॉन म्यू इज नथिंग बट रो, दैट इज ट्रैफिक इंटेंसिटी। कोई बात नहीं, तो फाइनली हम लोग P2 की जगह लिख रहे हैं रो का स्क्वायर P0। और ऊपर यहाँ पे मैंने P1 क्या लिखा था बताओ? इसी को अगर लैम्डा के टर्म में लिखूं मैं, तो इसको क्या लिखेंगे? ये इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। तो P1 का वैल्यू इसको ही लिख रहा हूँ, बोलो। तो P1 इक्वल टू क्या है? इसको हम लोग रो लिख देंगे, ट्रैफिक इंटेंसिटी। तो P0 इंटू रो, P0 इंटू रो। तो P1 का वैल्यू P0 इंटू रो। यहाँ पे मैं समराइज कर रहा हूँ और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो देखो, इतना सब करने के बाद मैं सारी चीजों को समराइज कर रहा हूँ। तो हमने P1 निकाला रो इंटू P0, और P2 आप देख रहे हो सामने ही निकाला है, P2 इक्वल टू रो का स्क्वायर P0। तो सिमिलरली आप P3 मुझे बताओ बिना सॉल्व किए। रो क्यूब इंटू P0, राइट? Yes, sir. तो इन जनरल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Pn? रो एन Rho and P0. P0। और हमें यही डिराइव करना था कि नंबर ऑफ कस्टमर n अगर है तो उसके चांसेस क्या है। तो फाइनली ये आपका आंसर प्रूफ हो गया। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। n number of customer in a system, what is the probability of that? That is Pn equal to rho raised to n into P0। ये पूरा डेरिवेशन का ये एप्लीकेशन। होप सो ये समझा रहेगा। थोड़ी देर में नोट डाउन करना, डोंट वरी। अभी जो फॉर्मूला मिला है इस पे फोकस कर। चलो अगला डेरिवेशन करते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ LS। LS का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन अ सिस्टम। सिस्टम में टोटल कितने कस्टमर है वो डिराइव करना है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड। Okay, so now derive the expression of LS. LS is nothing but expected number of customer in the system. तो LS equal to सारे possibility लिखेंगे। Suppose that system में 0 customer है तो उसके chances 1 customer है, तो what is the probability of for 1 customer? P है। So what is the average? The probability of 2 customer? P2। ये सबको add कर देंगे तो total average मिलेगा कि नहीं? Yes. Now substitute the value of P0, P1, P2 like that. ये तो पहला टर्म 0 हो गया, उसको इग्नोर करो। 1 into P1. What is the value of P1? Tell me. Rho P, P0, P2 का वैल्यू बताओ। Rho square P0. P0। आगे ये 2 टाइम्स भी लिखना यहाँ जरूरी है, ये 2 भी तो है। आगे 3 टाइम्स P3 आएगा। P3 का फॉर्मूला रो क्यू P0, ऐसे डॉट डॉट डॉट। Yes. बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. इसमें से आप रो 0 कॉमन ले लो, रो एंड P0 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 1 प्लस 2 रो प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. अभी एक सीरीज का आंसर होता है, पता नहीं वो आंसर आपको याद है कि नहीं याद है, जिसको बाइनोमियल एक्सपांशन बोलते हैं। याद है किसी को? हाँ? नहीं याद है? ठीक है, अभी नहीं याद है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, बट वो एक बाइनोमियल एक्सपांशन होता है जो आपको याद रहना चाहिए था, बट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज का आंसर होता है 1/1 माइनस रो कंप्लीट होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज द बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर डिग्री -2, रो इनटू P0। दिस इज द LS। एंड P0 क्या है जरा उसको भी डिराइव कर लेते हैं, ठीक है ना? तो P0 का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस रो। P0 इज नथिंग बट 1 माइनस रो। कहां से आया उसका प्रूफ करेंगे, क्योंकि मैंने सब इतना सब कुछ प्रूफ करके दिया तो इसको क्यों पेंडिंग रखते हैं। तो P0 का वैल्यू क्या है वो हम लोग डिराइव करके लेंगे इधर, जिसका फॉर्मूला आएगा 1 माइनस रो। क्लियर?
चलो डिराइव करते हैं और फिर लिखते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ तो लिखा तो उसको क्यों छोड़ दिया जाए। सो फाइनली यहाँ पे मैं डिराइव करता हूँ। ओहो, ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ये तो चला जाएगा, वो लिखा हुआ नहीं जाएगा। ठीक है, मैं इतने में डिराइव कर देता हूँ, ये जगह ले लेता हूँ, इतना सफिशिएंट जगह है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट P0 इक्वल टू 1 माइनस रो, दिस इज अ वन मोर फार्मूला, इतने में प्रूफ हो जाएगा, डोंट वरी। तो सबको मालूम है कि एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज 1, एडिशन करेंगे 1 आएगा, इसमें n की जगह 0 पुट करो तो P0 प्लस P1 प्लस P2 डॉट डॉट डॉट, फाइनली आंसर इज 1। P0 को ऐसे रखो, P1 का वैल्यू क्या है, रो P0, P2 का वैल्यू क्या है, रो स्क्वायर P0 डॉट डॉट डॉट, आंसर 1। P0 कॉमन ले लेंगे, so this is 1 plus row square dot dot dot, answer is 1. And once again this is the binomial expansion, answer is 1 minus 1 upon 1 minus row, this is equal to 1। ये जो सीरीज है उसका ये फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड एज द बायनोमियल एक्सपांशन, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, चाहे कोई भी स्ट्रीम से आप क्यों ना हो। तो फाइनली P0 का फॉर्मूला 1 माइनस रो यहाँ पे डिराइव हो गया। ये P0 का वैल्यू लाके यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे LS के फॉर्मूला में, तो फाइनली LS रोज into P0 is nothing but 1 minus row and 1 upon 1 minus row the whole square। Finally ये complete कट जाएगा and last answer is row upon 1 minus row। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। समझ के लो, बाद में आप नोट डाउन भी करेंगे, डोंट वरी। सो LS का जो फॉर्मूला डिराइव हुआ दैट इज रो अपॉन 1 माइनस रो, दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी। अगर इसी फॉर्मूले को लैम्डा और म्यू में लिखना हो तो रो की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, बोलो रो की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, रो का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन म्यू, ये दिमाग में सेट करो, तो ये पुट करोगे तो हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू, सिंप्लीफाई करो, म्यू म्यू कट जाएगा, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो ये LS का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। व्हाट इज द लैम्डा, अराइवल रेट, म्यू इज द डिपार्चर रेट और सर्विस रेट, formula mu minus lambda, is it clear? So there are two formula, first formula in terms of traffic intensity or utilization factor, and second formula in terms of arrival rate as well as this rate, understood? So this is the formula of LS, यानी सिस्टम में कितने कस्टमर प्रेजेंट है उसका ये फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं सिस्टम में क्यू में कितने प्रेजेंट है कस्टमर, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, वो कैलकुलेट करना। तो LS का मतलब होता है LQ प्लस रो, रो मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर, कितने लोगों को सर्विस मिल रही है, मतलब सिस्टम कितने टाइम के लिए यूटिलाइज है, दैट इज कॉल्ड एज रो। तो यहाँ से LQ इजीली मिल जाएगा, बोलो LQ का वैल्यू, LQ इक्वल टू LS माइनस रो, राइट? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LS, डिराइव किया ना हमने LS का वैल्यू, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। नहीं, रो वाला पहले बताओ, पहले रो वाला बताओ, रो अपॉन 1 माइनस रो, तो रो अपॉन 1 माइनस रो, माइनस रो सिंप्लीफाई करते हैं, रो माइनस रो इंटू 1 माइनस रो, एलसीएम ले लिया, डिवाइड बाय 1 माइनस रो, ये फाइनली रो रो कैंसिल हो जाएगा, तो रो स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस रो, क्लियर है? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Q, LQ in terms of row. Now in terms of lambda and mu, so substitute rho equal to lambda upon mu, right? ये जो रो का फॉर्मूला मिला है इसमें रो की जगह लैम्डा अपॉन क्यू पुट करेंगे, सो लैम्डा बाई म्यू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, सिंप्लीफाई करो तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, नीचे हो जाएगा म्यू माइनस लैम्डा द होल डिवाइड बाई म्यू, एक म्यू और एक म्यू कट जाएगा, तो फाइनली आंसर इज लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू इनटू ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा। So this formula in terms of mu or lambda, and this formula is nothing but in terms of utilization factor or traffic intensity, दोनों आपको याद रखना। नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ WS। WS ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में ही आपको नोट डाउन करने को दिया था, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम डिवाइड बाय अराइवल रेट। तो सिस्टम में कितने कस्टमर है वो उसको हम लोग LS बोलेंगे, LS ऑलरेडी आपने डिराइव किया है,
और अराइवल रेट मतलब लेमडा होता है, तो WS इक्वल टू क्या हो जाएगा, LS का फॉर्मूला था रो अपॉन 1 माइनस रो, नहीं आप म्यू वाले टर्म में लिखो क्योंकि यहाँ पे लेमडा कट जाएगा तो बेटर रहेगा। तो आप लेमडा और म्यू के टर्म में LS का फॉर्मूला बताओ। यस, लेमडा और म्यू के टर्म में LS का फॉर्मूला था लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, राइट, एंड डिवाइड बाय लेमडा। बोलो ये क्लियर है? फाइनली लेमडा लेमडा कैंसिल होगा, so 1 upon mu minus lambda. So this is the formula of WS. Now calculate WQ. WQ is nothing but WS का मतलब होता है लाइन में कितने का वेटिंग टाइम है और उसका सर्विस टाइम कितना है। तो अगर mu is the service rate तो सर्विस टाइम is nothing but 1 upon mu. तो ये हमने 1 upon mu ऐड कर दिया। अब मुझे निकालना है WQ, so that is WS minus 1 upon mu, and WS आपने अभी भी डिराइव किया है 1 upon mu minus lambda minus 1 upon mu। इसको हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम लेने के बाद म्यू इधर चला जाएगा एंड म्यू माइनस लेमडा इधर डिवाइड बाय म्यू माइनस लेमडा इनटू म्यू। न्यूमरेटर में म्यू से म्यू कट जाएगा, म्यू माइनस म्यू प्लस लेमडा डिवाइड बाय म्यू माइनस लेमडा इनटू म्यू। म्यू से म्यू कट गया, फाइनली आंसर इज लेमडा अपॉन म्यू इनटू म्यू माइनस लेमडा। दिस इज द फाइनल आंसर। और इस तरीके से हमने सारे डेरिवेटिव करके सारा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर लिया। सो यू कैन राइट दिस लिस्ट ऑफ फॉर्मूला एंड देन यू विल सॉल्व द एग्जांपल। ओके, यस, राइट दिस ऑल फॉर्मूले जो हमने अभी अभी डिराइव किए। Okay, so let's see some example based on this model m/m/1 is to infinity is to infinity is to f. Okay, so these are the formula related to this model 1. इसमें एक ही चैनल है। फर्स्ट क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन में लेमडा और म्यू दिया है और हर एक इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। ऑलमोस्ट दिस इज द मास्टर क्वेश्चन जिसमें आपको हर एक चीज कैलकुलेट करना है। तो लेमडा और म्यू दिया है। कभी भी क्वेश्चन में अगर लेमडा और म्यू दिया हो तो सबसे पहले आप रो निकाल के रख लो। रो का फॉर्मूला बताओ। lambda by mu. लेमडा बाय म्यू। व्हाट इज वैल्यू ऑफ लेमडा? 8, म्यू इज 9। दिस इज आंसर 8/9। ये निकाल के रख लिया, यूज में आए या ना आए लेकिन निकाल के रखो। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर इन द सिस्टम, मतलब P1 पूछा है, P2 पूछा है, P3 पूछा है, क्या पूछा है? हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया n, ये n कस्टमर इन द सिस्टम के लिए डिवाइड किया है, डिराइव किया था n कस्टमर इन द सिस्टम। मैं आपको 0 कस्टमर के लिए पूछ रहा हूं तो आप क्या लिखोगे? Pn is nothing but number of customer and n customer in the system. P0. So if n equal to 0, then is P को क्या लिखेंगे? P0. And what is the P0. formula of P0? 1 minus p. 1 minus rho. Oh, And what is the value of rho? 8/9. Simplify this expression. Tell me the final answer. Understood? yes, sir. Okay. Tell me the next question. Probability of 1 customer in the system. That means what? P1. P1. What is the formula of P1? What is the formula of Pn? Rho raised to n, P0. What is the formula of P1? According to this formula, what is the formula of P1? Rho raised to 1 P0. Rho raised to 1 into P naught. What is the value of rho? That is 8/9. And what is the value of P naught? That is 1/9. What is the final answer? 81. Any doubt? No, sir. Next, third part. No probability of no Q. मतलब कोई लाइन नहीं बनी है। इसका मतलब लाइन में कोई भी खड़ा नहीं है। देखो ये मैंने स्टार्ट में डायग्राम बनाया था, ये लाइन हो गया और ये सर्विस सेंटर हो गया, तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे तो हो सकता है, बोलो। No arrive. नो क्यू का मतलब यहाँ पे 0 कस्टमर है यानी कि P0, बट एक को सर्विस मिल रहा है, दैट इज P1। ये P1 Yes, sir. मतलब एक को सर्विस मिल रहा है और P0 मतलब लाइन में कोई नहीं है। तो दिस इज द आंसर P0 प्लस P1। P0 निकाला है 1/9, P0 निकाला 8/81। फाइनली ऐड कर लेंगे तो 17/81। एनी डाउट स्टूडेंट्स? एनी डाउट? No, sir. Okay, now No, sir. next part.
ये एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, इसी को एलएस बोलते हैं। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, दैट इज एलक्यू बोलते हैं। एवरेज टाइम ऑफ कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम, दैट इज डब्ल्यूएस, एंड दिस इज नथिंग बट डब्ल्यूक्यू। सो वन बाय वन सबके फॉर्मूला बताओ। पहले आप एलएस का फॉर्मूला बताओ। रो अपॉन 1 माइनस Row upon 1 minus row. What is the value of row? 8 by 9. 1 minus 8 by 9. What is the answer? ठीक है। सेकेंड पार्ट नहीं निकालो इसको। 8 by 9. 8 by 1. 8 ना, हाँ 8 by 1 मतलब 8। हाँ 8 कस्टमर्स। पूरे सिस्टम में कितने कस्टमर है? 8 कस्टमर है। नेक्स्ट पूछा है एलक्यू, मतलब लाइन में कितने खड़े हैं? फॉर्मूला क्या था? एलएस माइनस रो। रो। एलएस कितना है? 8, रो कितना है? 8 by 9। सॉल्व करो, डेसिमल में आंसर बताओ प्लीज। 8 minus 8 by 9। एट माइनस 8 by 9। 64 by 9। ठीक है। 64 राउंड by 9। फिगर 7 कस्टमर। योर कैलकुलेशन इज वेरी पुअर, डोंट वरी। 7.11 आएगा। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है? WS। टेल मी द फॉर्मूला ऑफ WS। E के बाद F। LS by lambda। LS by lambda। What is the value of LS? 8. And lambda is what? 8। 8। क्वेश्चन में दिया है। सर वेटिंग टाइम इज 1। क्या मिनट सेकेंड? क्या वो क्वेश्चन में लैम्डा का यूनिट क्या है वहां से पता चलेगा। लैम्डा का यूनिट और म्यू का यूनिट आवर्स है, तो वेटिंग टाइम इज 1 आवर्स। अंडरस्टूड? लास्ट पार्ट WQ। LQ by lambda। 2 by lambda. LQ कहां से है? WQ पूछ रहा हूँ। So WQ is LQ by lambda। अच्छा, LQ by lambda। LQ कितना मिला? 7.11 डिवाइड बाय लैम्डा इज 8। टेल मी द आंसर। नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं, 2.88. मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 7.11 डिवाइड बाय 8। यस 0.88. 53 minutes। 0.88 hours मतलब 53 minutes। 60 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और कुछ नहीं किया। Yes sir. अंडरस्टूड? Yes sir. पहला क्वेश्चन समझा? बोलो। Yes sir. Yes sir।